Hello students, today our topic of discussion is liver. So firstly, we have to understand about the histological arrangement of hepatocytes in liver, or the histological arrangement, what is the functional unit of liver, which is better known as the lobule. So in this video we are just going to focus on that. Further, we will in another videos we will discuss about the bile and the biliary system, as the liver secretes a digestive juice which is known as bile. It is the assisting digestive juice, that is bile, which helps in digestion. So it is secreted by liver. So in further videos we will discuss about the bile and the biliary system, and then we will summarize the functions of liver as a whole. So in this video we are here only focusing on the liver, its anatomical position, how the hepatocytes are arranged in the liver parenchyma. So today only we are going to discuss about the lobule, that is the functional unit of the liver. So let's start with it. Firstly, the location, that is the anatomical location of the liver, where the liver is located in the abdominal cavity. So as we all know, it is the largest gland in the body. Obviously it is a gland, but as per the size is considered, liver is considered as to be the largest gland in the body. So liver is the largest gland in the body, which is located on the right side of the body under the diaphragm. तो abdominal cavity में right side में in right hypochondrium and epigastric region liver is present. It is suspended from the diaphragm and abdominal wall by the falciform ligament. तो it is suspended by the diaphragm, और हम कह सकते हैं कि इसका it is connected to the diaphragm by the falciform ligament. So it has four lobes. Anatomically, liver can be divided into four lobes or sections, which are left lobe, right lobe, quadrate lobe, and caudate lobe. So this is the basically it is the topic of anatomy, and you all must have uh, mm, learnt this in the anatomy classes. So here I am not going deep into that. Then next is, it is covered by a connective tissue capsule and the visceral peritoneum, and it is the largest organ in the body. If we actually largest organ in the body is considered the skin, as skin is the largest organ. But अगर हम abdominal organs की बात करें तो obviously it is the largest organ, but otherwise largest organ of the body is skin. It is not liver, it is actually the skin. So it is covered by a connective tissue capsule and the visceral peritoneum. outer layer जो है वो liver की वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है. उसके अंदर जो है लीवर का पैरेन्काइमा अरेंज है, और लीवर पैरेन्काइमा इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रोमा एंड हिपेटोसाइट्स. So it contributes about 1/50th of the total body weight. So if weight is being concerned, then its weight is 1.5 kg in adults, which is about 1/50th of the total body weight. Basic functional unit of the liver is the liver lobule. That is the topic of discussion today. कि जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है लीवर की वो क्या है, लीवर लोब्यूल. जैसे कि हमने दूसरे ऑर्गन्स में भी सबकी हमने कुछ फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, उनके पैरेन्काइमा में जो सेल्स होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शंस को करने के लिए जो यूनिट एज अ यूनिट जितने जो सेल्स अरेंज होकर काम करते हैं उनको हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं. तो यहाँ पर जो लीवर में जो फंक्शनल यूनिट है डेट इज़ लिवर लोब्यूल्स. जैसे कि किडनी में जो फंक्शनल यूनिट है डेट इज़ नेफ्रॉन. सिमिलरली यहाँ पर जो फंक्शनल यूनिट है डेट इज़ लिवर लोब्यूल, which is 0.8 to 2 millimeter in diameter and 50 to 100,000 in the liver. तो अगर हम सेक्शन बाय सेक्शन अगर हम लीवर को स्टडी करना शुरू करें तो सबसे पहले लीवर 4 लोब्स में बटा है, और उन लोब्स के अंदर फिर बहुत सारे लीवर लोब्यूल्स प्रेजेंट है. उन्हीं लोब्स के अंदर जो हिपेटोसाइट्स है दे आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, जिस पैटर्न को हम बोलते हैं लीवर लोब्यूल. सो around 50 to 100 thousands of the liver lobules are present in liver as a whole. Sinusoids are basically the
spaces which blood, so इसी तरह साइजेस है जो है that is done by endothelium. ब्लड कहता है राइट से so it from the cells है जिनको उस हेपेटिक है वो आकर this blood जो हम में ही के फाइनल so it's lobule. So hepatic lobule is a hexagonal honeycomb like structure which is made of hepatocytes. बेसिकली जो हिपैटिक लोब्यूल है, जैसे कि हनी कॉम्ब में क्या रहता है, अगर हम हनी कॉम्ब को देखें, मधुमक्खी का छत्ता, अगर हम उसमें देखें तो हेक्सागोन लाइक है ना, हनी कॉम्ब उसी को कहते हैं हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, जहाँ पर बहुत सारे हेक्सागोन आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं. तो यहाँ पर जो हिपैटिक सेल्स हैं ये भी हेक्सागोन शेप में अरेंज्ड रहते हैं और उस हेक्सागोन के सेंटर में सेंट्रल वेन निकलती है जिसमें सारे साइनोसॉइड्स जो हैं वो ड्रेन हो जाते हैं. अब यहाँ पर भी जो हिपैटोसाइट्स हैं दीज आर अरेंज्ड, ये पूरा जो है 3D स्ट्रक्चर बनाता है. तो यहाँ पर ऐसे नहीं है कि एक एक सेल अरेंज्ड है. तो जो हिपैटोसाइट्स हैं ये बेसिकली लेमिनाज में रेडियली अरेंज्ड रहते हैं. तो यहाँ पे लेमिना से क्या मतलब है, लेमिना से मतलब है कि जो हिपैटोसाइट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होकर कॉलम्स बनाते हैं. तो बहुत सारे कॉलम्स जो है फिर रेडियली अरेंज्ड रहते हैं अराउंड द सेंट्रल वेन. और किस शेप में अरेंज रहते हैं, हेक्सागोनल शेप में अरेंज रहते हैं. तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल. अगर हम यहाँ पर इस फिगर में देख के हम समझ में आएगा कि दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लोब्यूल. यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है लोब्यूल का. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बीज कलर से आप इस तरह से स्क्वायर शेप के जो सेल्स देख रहे हैं दीज आर द हिपैटोसाइट्स. तो ये क्या है, हिपैटोसाइट्स हैं. तो यहाँ पर और जो आप ग्रीन कलर में हम देख रहे हैं डेट इज़ द बाइल कैनालिकुली. रेड कलर में जो हमको दिख रहा है डेट इज़ द हिपैटिक आर्टरी एंड पर्पल कलर में है हिपैटिक पोर्टल वेन एंड ब्लू कलर में है सेंट्रल वेन. तो अगर हम स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करें तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक सेंट्रल वेन है, इसके अराउंड रेडियली हिपैटिक लैमिनास जो है या हिपैटिक प्लेट्स जिनको हम कह सकते हैं वो अरेंज्ड है. तो हिपैटिक प्लेट्स में भी क्या है, एक हिपैटिक प्लेट्स में 2 कॉलम्स हैं हिपैटोसाइट्स के. तो हिपैटोसाइट्स एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होकर कॉलम्स बनाते हैं. ऐसे 2 कॉलम्स मिलकर एक हिपैटिक प्लेट बनाते हैं. और 2 कॉलम्स और जो एक हिपैटिक प्लेट के अंदर जो 2 कॉलम्स है उनके बीच में
बाइल कैनालिकुली ड्रेन करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं कि हर हर दो हिपैटिक लेमिनाज या हर दो कॉलम के बीच में हम एक ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस फिगर में, डेट इज़ द बाइल डक्ट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और इनके बीच का जो स्पेसेस है, इन कॉलम्स के बीच का जो स्पेसेस है, इन हिपैटिक प्लेट्स के बीच का जो स्पेसेस है, इसको हम बोलते हैं साइनोसॉइड्स। और ये सारे साइनोसॉइड्स जो है देन फाइनली किस में ड्रेन होते हैं, फाइनल सेंट्रल वेन में। तो दिस हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर लोब्यूल। So lobule is a hexagonal honeycomb like structure which is made up of hepatocytes. और hepatocytes कैसे अरेंज है इस honeycomb structure में? These hepatocytes are arranged in columns which form hepatic plates. ये जो hepatocytes हैं कॉलम्स में अरेंज है। कॉलम्स का मतलब है एक के ऊपर, जैसे हम कॉइन के ऊपर कॉइन रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिपैटोसाइट्स वन बाई वन इस तरह से पाइल अप होकर एक कॉलम बनाते हैं। ऐसे दो कॉलम्स के बीच में बाइल डक्ट ड्रेन करती है, और ऐसे दो कॉलम और बीच में बाइल डक्ट, ये पूरा अरेंजमेंट कहलाता है हिपैटिक प्लेट। और ऐसे ही हिपैटिक प्लेट्स रेडियली अरेंज्ड हैं अराउंड द सेंट्रल वेन। और ये पूरा, और किस रेडियली कैसे अरेंज्ड है, इस तरह से अरेंज है कि ये हेक्सागोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हिपैटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन कॉलम्स विच फॉर्म हिपैटिक प्लेट्स। ईच हिपैटिक प्लेट इज मेड अप ऑफ 2 कॉलम्स ऑफ सेल्स। तो हर एक हिपैटिक प्लेट में 2 कॉलम्स है सेल्स के, एंड बिटवीन द 2 कॉलम ऑफ ईच प्लेट इज बाइल कैनिकुलस। हर एक प्लेट में जो 2 कॉलम्स हैं, ईच हिपैटिक प्लेट कंटेन्स 2 कॉलम्स ऑफ हिपैटिक सेल्स, एंड बिटवीन these 2 columns of hepatocytes there exists a bile canaliculus। तो हर एक 2 कॉलम के बीच में बाइल कैनालिकुलस है, एंड बिटवीन 2 नेबरिंग प्लेट इज स्पेस। और 2 नेबरिंग प्लेट्स के बीच में क्या है, स्पेस है, जिसको हम बोलते हैं साइनोसॉइड्स। तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ साइनोसॉइड्स बिटवीन ईच हिपैटिक प्लेट। ठीक है। तो लोब्यूल में भी अब जो स्ट्रक्चर है, अगर हम लोब्यूल के भी माइनर स्ट्रक्चर में जाएं तो हिपैटोसाइट्स कैसे अरेंज्ड है। सबसे पहले अगर हम सबसे माइन्यूट स्ट्रक्चर की हिपैटिक लोब्यूल में अगर सबसे माइन्यूट स्ट्रक्चर की बात करें, वो है हिपैटोसाइट। फिर हिपैटोसाइट क्या बनाता है, कॉलम बनाता है। तो हिपैटोसाइट जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर पाइल अप होकर क्या बनाते हैं, हिपैटिक कॉलम बनाते हैं। ऐसे 2 हिपैटिक कॉलम मिलके क्या बनाते हैं, हिपैटिक प्लेट बनाते हैं। 2 कॉलम्स के बीच में बाइल कैनालिकुलस ड्रेन करती है। तो बेसिकली हर एक हिपैटिक प्लेट में स्ट्रक्चर क्या हुए, 2 कॉलम्स ऑफ हिपैटोसाइट्स, एंड इन बिटवीन दोज कॉलम्स एक बाइल कैनालिकुलस। ये पूरा तीनों का स्ट्रक्चर जो मिलके बनता है वो क्या कहलाता है, हिपैटिक प्लेट, या फिर समटाइम्स कुछ बुक्स में आपको टर्म मिलेगी हिपैटिक लैमिनाज। तो ये हिपैटिक लैमिनाज बनाते हैं। हर 2 हिपैटिक लैमिना के बीच में जो स्पेस एग्जिस्ट करता है उस स्पेस को हम बोलते हैं साइनोसॉइड्स। और यही जो हिपैटिक प्लेट्स या फिर हिपैटिक लैमिनास हैं, ये सेंट्रल वेन के अराउंड रेडियली अरेंज्ड है इन हेक्सागोनल फैशन। ठीक है ना। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ हिपैटिक प्लेट्स इज नोन एज लोब्यूल। सो एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ साइनोसॉइड्स हैज़ एक्सट्रीमली लार्ज पोर्स। लेकिन जो साइनोसॉइड्स की जो एंडोथेलियल लाइनिंग है, जैसे कि अगर हम ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल लाइनिंग की बात करें तो वहाँ पर जो पोर्स हैं वो बहुत माइन्यूट होते हैं, इसीलिए प्लाज्मा लीकेज नहीं होता है। बट एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द साइनोसॉइड्स हैज़ एक्सट्रीमली लार्ज पोर्स। वहाँ पर जो पोर्स हैं वो लार्ज हैं, इसीलिए साइनोसॉइड से जो प्लाज्मा है वो लीक कर जाता है, और जो फाइनली ब्लड वेसल्स से जो भी फ्लूइड लीक करता है डेट इज़ नोन एज लिम्फ। इसलिए जो लीवर है वहाँ पर लिम्फ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, बिकॉज द स्पेस बिटवीन द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द साइनोसॉइड इज़ मच लार्जर देन द ब्लड वेसल्स, इसलिए यहाँ पर लीकिंग होती है प्लाज्मा की, एंड दैट लीक्ड प्लाज्मा इज नोन एज लिम्फ। So sinusoids are lined by endothelial cells, macrophages, which are known as Kupffer cells, and are present between these endothelial cells. So large cells या macrophages which is present in the liver is known as Kupffer cells, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इन द एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द साइनोसॉइड्स। वहीं पर ये पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पूलिंग ऑफ ब्लड है। तो अगर कोई फॉरेन पार्टिकल वहाँ पर प्रेजेंट है या कोई इन्वेडिंग बैक्टीरिया इज देयर, तो डेट कैन बी बेटर डाइजेस्टेड बाय द Kupffer cells।
So between hepatic cells and endothelial cells, there occurs the perisinusoidal space. So substances in plasma which flow freely into these spaces through the pores and finally removed from these through the lymphatics. क्योंकि ये लीकिंग है, यहाँ पर साइनसोइडल जो लाइनिंग है, एंडोथेलियल लाइनिंग है, वहाँ पर पोर्स क्योंकि ज़्यादा है इसलिए लीकिंग हो जाती है प्लाज्मा की, और डेट लीक्ड प्लाज्मा इज नोन एज द लिम्फ. इसलिए बहुत सारा लिम्फ जो है वो लीवर में बनता है विच इज़ ड्रेन्ड और रिमूव्ड फ्रॉम दिस थ्रू द लिम्फेटिक्स. सो अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द लिम्फ, जो बॉडी में जितना भी लिम्फ है उसका हाफ ऑफ द लिम्फ इज फॉर्म्ड इन द बॉडी इन लीवर. लिम्फ फ्लोज थ्रू द स्पेस ऑफ डिसी टू कलेक्ट इन स्मॉल लिम्फेटिक कैपिलरीज एसोसिएटेड विद द पोर्टल ट्राइड्स. अभी हम पोर्टल ट्राइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे. क्या है पोर्टल ट्राइड्स? तो जो लिम्फ जो फ्लो करता है फाइनली उसका भी एक फ्लो करने का सिस्टम है विच स्पेस, एक स्पेस विच इज़ नोन एज द स्पेस ऑफ डिसी. तो वहाँ से ये सारा कलेक्ट होकर फाइनल जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वहाँ पर इनको ड्रेन कर दिया जाता है. इफ़ प्रेशर इन द साइनोसॉइड्स इंक्रीज मच अबव द नॉर्मल, अगर किसी भी कारण से साइनोसॉइड्स में प्रेशर इंक्रीज करता है देन ऑब्वियसली जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा लीकिंग होगी, सो उतना ही ज़्यादा लिम्फ का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. सो इफ़ देयर इज इंक्रीज इन द प्रेशर in the sinusoids then there is correspondingly increase in the production of lymph. In severe cases the liver literally sweats lymph. In severe cases कुछ जो सिरोसिस या कुछ ऐसी जो कंडीशन है जहाँ पर प्रेशर साइनोसॉइडल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, वहाँ पर जो एब्डोमिनल लिम्फ है वो लिटरली इट स्वेट्स फ्रॉम द लिवर एंड विच कलेक्टेड इन द एब्डोमिनल कैविटी एज द एसाइटिक फ्लूइड, जिसे हम एसाइटिस की कंडीशन बोलते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. यहाँ पर हम अब बात करते हैं पोर्टल ट्राइड्स की. तो पोर्टल ट्राइड्स बेसिकली इज़ द जो भी हमारा अब जो लोब्यूल का जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पर हर एक हेक्सागोन के या पॉलीगॉन के हर एक एंगल पे 3 वेसल्स आर प्रेजेंट जिनको हम बोलते हैं पोर्टल ट्राइड. अब वो 3 वेसल्स क्या क्या है? हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और जो बाइल डक्ट्स, जो अभी हमने जो बात करी थी कॉलम्स की, लेमिनास की, हर एक लेमिना में एक बाइल डक्ट बीच में आ रही है तो वो कलेक्ट होकर जो है वो बाइल कैनेडिकुलीज जो कलेक्ट होकर फाइनली वहाँ पर जाकर मिलती हैं, कलेक्ट होकर जो डक्ट बनाती हैं, बाइल डक्ट्स बनाती हैं, डेट वन. सो द पोर्टल ट्राइड इज फॉर्म्ड बाय द हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट. दीज 3 collectively are known as the portal triads and these triads are present at the angle of that hexagonal structure. So this is the structure of lobule and this is the histological structure of the liver parenchyma. So thank you.